आत्मा नमस्ते माँ, कैसे हैं आप? I just want to thank you for everything you have done. Thank you so much. I love you for everything, for your blessing. हमने शायद बहुत से पुण्य कमाए हैं जो हम आपसे मिले, आपसे जुड़े। स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी ये एक कोर्स ही नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है जो हमारी लाइफ में मतलब हम अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि हम इस कोर्स को, इस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाए आपके थ्रू। जो मिरेकल्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में होते हुए, इस कोर्स में जिस तरह से आप हमें ब्यूटीफुल ट्रांस में लेके जाते थे, वी मेट आवर एंसेस्टर्स, उनकी प्रेजेंस को फील किया है। वी मेट गॉड, उनकी प्रेजेंस को फील किया है। इतनी चीजें चेंज हुई हैं जो लाइफ मेरी पहले थी और जो लाइफ मेरी आज है। इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी लाइफ में है, नॉट ओनली इन माय लाइफ, मेरी फैमिली, उनमें इतने चेंजेस आए, उनके बिहेवियर में इतने चेंजेस मैंने देखे हैं। जो बॉन्ड पहले नहीं था मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, वो इस मैजिकल कोर्स को करने के बाद हुआ है। बहुत सारी विशेष मेरी ऐसी पूरी हुई हैं जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब एक ड्रीम में वो एक ड्रीम था जो एक्चुअली में मैनिफेस्ट हुआ है। वी गॉट द पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स एंड ऑल थैंक्स टू यू माँ। एंड ये सब हुआ है जो हमने इस पे आप पर विश्वास किया है। अगर विश्वास नहीं करते तो शायद हम ये सब कुछ ना हासिल कर पाते, और इस विश्वास को करने की ताकत आपने हमें दी है। मेरे पास तो मतलब वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, कितना थैंक यू करूं उतना कम है। मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है, मेरी फैमिली में मेरी मदर एंड मेरी बच्चों की, मेरे हस्बैंड की इवन फैमिली हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया है। एंगर इश्यूज कंट्रोल हुए हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है जो कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूज कर चुकी थी। इमोशनल, एक जैसे कहते हैं एक स्ट्रेंथ मिली, एक पावर मिली है। इमोशनली ड्रेन रहती थी, समझ में नहीं आता था, जैसे एक रास्ता, एक नया पाथ, एक नई जर्नी शुरू करने की जो ताकत मुझ में नहीं थी वो मुझे मिली है आपसे माँ। दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। एंड माँ, मैं इस कोर्स को एक बार दोबारा से जरूर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सो मच माँ। Hi everyone, I'm Pooja Besania from Surat, and here I'm sharing with you. I would like to share with you with a journey of my healing with Cheryl D. I started my chakra activation on June 2024 for me, for my husband, and for my kids too, and my in-laws too. I would like to share that during this journey, first 2-3 months it was a very roller coaster. It was so emotional thing going on, emotional outburst and many things. Very confused and feel like nothing is working out. But slowly, gradually, after 6 months, I saw two changes within me. Slow change, but could see that changes within me and around me too. And I started liking it. And today it's March 2024, which I have completed almost 8 months of my chakra activation, and I can say that I can see so much glow on my face and so many changes within me. I can't describe it in words, but a lot of things have changed for me, and I have grown a lot in my spiritual journey. Not only that, I have also joined her spiritual accountancy and spirituality, which is, I think she has given a lot of knowledge about spirituality, which in my other courses, whatever courses I have done, I have not learned what is true spirituality unless until I joined Cheryl D's course, the spiritual. I got to know what is real spirituality, and she taught us in such patiently. She taught us. I learned a lot from her. That also has brought drastic change within me. And I will also like to tell you guys that, be patient with her healings and have faith in her healing. Just surrender yourself. If you do that, it will transform your life and you will see changes, lot of changes. I've learned and I'm still learning many things, though there is a roller coaster, but
I have just surrendered myself and being gratitude towards her healing. And that is what is helping me to go with the flow and be ease. So thank you so much, Dee, for this wonderful healing journey that you are doing. And thank you from all of us. And for me, I've changed a lot. A lot means a lot. Lot of patience. A lot of things are changing. And I can see things changing around me. At times, let me tell you last thing, guys, that, at times you will feel that, where is it going? It's not working for me and I'm right now in a bad situation, a lot of financial crisis. But let me tell you guys, if you keep patience and you just trust your healing, you won't see a financial crisis. Instead, you will see a lot of abundance and more than abundance, not only with money, but abundance in your life, happiness within you. And you will feel that money hardly matters. Mostly it will matter that you are happy and your family is happy. So thank you so much, Cheryl. You are teaching me a lot and I'm very, very happy. This video is just to give you the feedback about spiritual accountancy and manifestation. First, let me tell you that spiritual accountancy is something which I feel till now I've done many courses. And I think it's all in one, I can say. अब तक मैंने जो भी सीखा स्पिरिचुअल के बारे में, बट ट्रू स्पिरिचुअल क्या होता है वो इस कोर्स शैरल दी के इस कोर्स में ज्वाइन होने के बाद सीखा. मैं ऐसे बहुत कोर्सेज करती रहती थी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, एंड ऑफ कोर्स इट हैज ब्रॉट चेंजेस, बट रियल स्पिरिचुअल क्या है वो इस कोर्स में मैंने जब किया तभी मुझे पता चला. शेरल, थैंक्स टू शेरल दी टोल्ड मी वेट, I will tell you, you should join this course, you will get to know many things. It's an amazing course. किसी को जो already spiritual में है, if you are already in spiritual journey, or if you are beginning your spiritual journey, if you are the beginner, then this is the best course. First thing you must know about spiritual accountancy. बहुत कुछ सीखने मिलेगा. Second thing, see, it's not going to be a smooth journey during this course. It's going to be a roller coaster for me, of course, and I think many of the participants. मुझे नहीं पता, but मेरे लिए तो बहुत roller coaster ride था. बहुत कुछ सीखने मिला. बहुत बार गिरी भी हूँ, खुद को संभाला भी है. The best thing, that lastly I'll say that the best thing is you get to know yourself. You get to know yourself. You get up every day feeling that you are here in this life with some purpose. एक पर्पस के साथ तुम आए हो. तुम हर रोज जिस तरह से मैं रोज उठती थी, मैं अभी उस तरह से उठती नहीं हूँ. मुझे लाइफ इतनी प्यारी लगती है. मैं हमेशा से सीखते आई हूँ और मैं सीख भी रही हूँ. आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे द मोमेंट आई हैव लर्न दिस कोर्स. और एक बहुत बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई है इस स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी जर्नी में, और वो जो मैं कभी नहीं बोल पाती थी, और वो है सबसे बड़ा वर्ड, नो. नो मीन्स नो. पता है गलत हो रहा है, पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, पता है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बट मैं कभी नो नहीं बोल पाती थी. और उसके बाद से जो मैंने नो बोलना चालू किया, मैंने आज तक, मुझे लगता है कि मैंने हाँ नहीं बोला. सब चीजों के लिए मैंने नो बोल दिया, नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं. थोड़ा सा भी मन में जो हिचकिचाहट आती है, और मैं हमेशा से हिचकिचाहट भी आती है, तो भी प्लीज करने के लिए मैं हाँ बोल, वो भी नहीं. नो मीन्स नो. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. आई गॉट द करेज. उसके लिए ऑफकोर्स करेज लगे. बहुत सारे जन स्ट्रगल करते होंगे, आप में से हो सकता है जो नो, आप सीख जाओगे बहुत कुछ. यही नहीं, ये तो मेरे लिए था, आपके लिए कुछ अलग होगा, बट बहुत कुछ सीखोगे. सो प्लीज डू जॉइन दिस कोर्स. मैनिफेस्टेशन तो बाद में आएगा, मैनिफेस्टेशन तो है ही. आप मैनिफेस्टेशन ऐसे ही करोगे, आप अबंडेंट ऐसे ही हो जाओगे. अगर आपने स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी सीखा तो आप ऐसे ही अबंडेंट हो जाओगे. पर इतना ध्यान में रखना, जस्ट बिलीव, हैव द बिलीव इन दिस जर्नी, पेशेंस, and just go with the flow.
आसान नहीं है. It's not easy, but it's fun also. It's a good way to learn also, and you will meet many beautiful souls. And I will thank each and every participants who have been part of this, playing this role in each journey. I will thank each and everyone because they have taught me many things, many things. We'll see. Do so, all of you, please do join this course and enjoy this course as much as you can. Karo, abhi. Okay, see you. Thank you so much, Heraldi. Thank you to all the participants. All the best to all the new participants. See you. हेलो एवरीवन. मैंने अभी माँ से मेरे बेटे का जो अभी 15 साल का है और उसके 10th की एग्जाम्स है, तो उसके लिए मैंने ना बेड ब्रेन एक्टिविटी करवाया था. और मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था. 10th में होने के बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था. थोड़ा भी अपने लिए पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं था. वो उसको स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसको ऐसे ही था कि मेरा पढ़ के क्या होगा. लेकिन फिर आखिर में मुझे माँ मिले और मैंने उसको मिड ब्रेन एक्टिविटी करवाया. अभी तो फर्स्ट सेशन ही हुआ है, 5 दिन ही हुआ है, 6 दिन ही हुआ है, लेकिन नाउ ही इज रियलाइजिंग कि मम्मा अगर मैं 10th के एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर क्या है. अगर मैं क्रिकेट में भी सक्सेस नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा आगे. अभी नाउ वो अपने आप को और मुझसे वो क्वेश्चन पूछने रहा है, जबकि इतने साल मैं समझा के उसको थक गई कि बेटा हम लोगों के पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. तुमको स्पोर्ट्स में जाना है, आई एम ओके विद इट, लेकिन थोड़ा-सा हमारे पास ना स्टडीज़ का बैकअप तो होना ही चाहिए. स्टडी कभी भी काम आती है. तो नाउ ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मम्मा मुझे पढ़ना है अभी. एंड अभी मीन्स बोलेगा ना तो 10% उसमें फ़र्क है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैं इतना पूरा उसका 15 साल यानी अभी 13 साल से मैं उसको स्टडीज़ का सीरियसनेस समझा रही थी. वो नहीं समझ रहा था, लेकिन ये मिड ब्रेन के 5 दिन क्या है एक्टिवेशन से उसको रियलाइज हो रहा है कि मम्मा स्टडी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. नाउ ही स्टार्टेड अपना प्लान बना रहा है, अपने हिसाब से स्टडी करने 2 दिन से तो बैठ रहा है. अभी मैं आगे देखती हूँ, मैं अपने फिंगर्स क्रॉस करके रखती हूँ और मैं अभी 9th को जो मिड ब्रेन एक्टिविटी है नहीं सॉरी 13 या 16 को जो है वो भी मैं एनरोल करने वाली हूँ. एंड देन 38 को है वो भी मैं एनरोल करूँगी, क्योंकि उसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 6 फरवरी से और मेरे पास दिन बहुत कम है. माँ बस आप अपना ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ऐसे ही रखना. आप मैं बहुत 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 ग्रेटिट्यूड में हूँ. आप मुझे मिले तो मुझे एक रास्ता मिला, मेरे बेटे को एक रास्ता मिला. थैंक यू सो मच. आत्मा नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम तस्लीम है. मैं एक टैरो रीडर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और स्पिरिचुअलिटी में मैंने कुछ मॉडलिटीज सीखी है. पिछले 12 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ में एक शेयरिंग करने जा रही हूँ. मैं भले ही इस फील्ड में हूँ, मैंने मॉडलिटी सीखी है, हीलिंग किया है, रिजल्ट मिला है लोगों को, बट मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो बारी बारी आ ही रहे थे. एक लूप में मैं फंसी जा रही थी, वो खत्म होने का नाम ही ले रहे थे. और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रही कि वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ में क्यों हो रहा है ये. यही तलाश करते करते एक दिन, ये मैं 2025 की बात कर रही हूँ, अभी 26 चल रहा है. तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं माँ से मिली.
इंस्टाग्राम पर मैं रील स्क्रॉल कर रही थी और उनका मैंने फ्री आकाशिक देखा, वहाँ पर मैंने एनरोल किया। मैंने बस सिर्फ़ एक रिस्क लिया कि चलो देखते हैं कि इनसे क्या मैं जान सकती हूँ और क्या मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। माँ ने आकाशिक किया, उसके बाद में माँ ने कहा कार्मिक करवा लो, पैसे तो थे नहीं, कैसे करूँ? फिर जो भी कुछ पैसे थे उसमें से मैंने किया डीएनए एक्टिवेशन, ओके? वहाँ से फिर मुझे एक ग्रोथ मिली, पैसे आने लगे, काम मिलने लगा, कुछ तो भी समझ में आया कि यहाँ पर काम बन सकता है। उसके बाद में मैंने फाइनेंस फ्रीडम किया। यस, आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो फाइनेंस फ्रीडम का है कि फाइनेंस फ्रीडम के बाद में मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो फाइनेंस फ्रीडम के बाद में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास में रातों-रात पैसे आ गए या मैं आज की डेट में बहुत पैसे वाली हो गई। हाँ, फाइनेंस फ्रीडम जो माँ कहते हैं वो हमारे 3 चक्रा के ऊपर काम करते हैं, हमें हील करते हैं। वहाँ पर हमें एक फ्रीडम मिलता है, वो है संतुष्टि। कोई फ़ियर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बस सिर्फ़ आपको एक भरोसा आ जाता है कि हाँ, सब सही है, सही होगा। मुझे मेरे काम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मिली है, मैं बहुत अच्छे से अब काम कर रही हूँ और मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे आराम से मिल रहे हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अब मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ रहा है। मेरी हर चीज़, हर काम, रिलेशन मेरे खुद के साथ का, मेरे काम और बाकी चीज़ों में मैं बहुत आराम से अब अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ये शेयरिंग स्पेशली मैं फाइनेंस फ्रीडम के लिए कर रही हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बाकी लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। बट हाँ, जो तलाश मेरी थी पर्सनल, वो मुझे माँ से मिलने के बाद में वो जो हीलिंग देते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं और वो जो कहते हैं, वो सही में होता है। तो बस मैं इतना आपसे शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू माँ, आप मेरी ज़िंदगी में आए और सही में मुझे एक राइट डायरेक्शन मिल रहा है। आत्मा नमस्ते।